Hello everyone, welcome to our channel Universal Laws. This is the first lecture of jurisprudence, basically an introductory class. So let's begin with the introduction of jurisprudence. The term jurisprudence is made up of two terms, that is juris and prudentia. These are Latin terms. Juris means legal and prudentia means skill or knowledge. Thereby, jurisprudence means knowledge of law or skill in law. सो jurisprudence जो है वो दो टर्म्स से मिलकर के बना है, juris एंड prudentia. फर्स्ट ऑफ ऑल जो jurisprudence है इसको किसने डिफाइन करा? रोमन जूरिस्ट ने jurisprudence को डिफाइन करा. एंड यू मस्ट नो दिस थिंग कि जितने भी सब लॉज हैं, सब बेयर एक्ट्स हमारे या जो भी सब लॉज हैं, दे ऑल डिराइव द सैंक्टिटी और अ basically they all are related somewhere to jurisprudence, because jurisprudence is the backbone of all these laws. Okay, so first of all jurisprudence की जो definitions हैं वो रोमन jurist के द्वारा दी गई, जिसमें फर्स्ट डेफिनेशन आती है अल्पियन. अकॉर्डिंग टू अल्पियन, jurisprudence is the knowledge of things which are divine and human and the science of just and unjust. कि jurisprudence एक साइंस है किस चीज़ की? जस्ट एंड अनजस्ट की, कि क्या चीज़ सही है, क्या जस्ट है, जस्टिफिएबल है, और क्या अनजस्ट है. इसी चीज़ की स्टडी को उन्होंने माना कि यही jurisprudence है. देन पॉलस ने एक डेफिनेशन दी कि द लॉ इज़ नॉट टू बी डिड्यूस फ्रॉम रूल बट द रूल फ्रॉम लॉ. ये डेफिनेशंस हमें याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो डेफिनेशन दे देंगे एंड दे विल आस्क कि ये डेफिनेशन किस जूरिस्ट के द्वारा दी गई. ओके, सो आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि किस जूरिस्ट के क्या व्यूज़ थे और उन्होंने jurisprudence को किस तरह से डिफाइन किया. According to Bentham, he divided jurisprudence into two types, that is sensorial jurisprudence and expositorial jurisprudence. What is the meaning of sensorial jurisprudence? By sensorial jurisprudence, it means law as it ought to be. What means ought to be? Ought to be मतलब law कैसा होना चाहिए. And एक्सपोजिटोरियल jurisprudence मीन्स लॉ एज इट इज़, मीन्स जो एग्जिस्टिंग लॉ है वो क्या है. ठीक, तो बेंथम ने jurisprudence को सेंसोरियल एंड एक्सपोजिटोरियल jurisprudence के दो तरीके के jurisprudence में डिवाइड किया. देन अकॉर्डिंग टू जूलियस स्टोन, jurisprudence इज लॉयर्स एक्सट्रावर्जन. जूलियस स्टोन ने jurisprudence को लॉयर्स के साथ कोरिलेट किया. नेक्स्ट डेफिनेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज ऑस्टिन. ऑस्टिन की बुक है दैट इज द प्रोविंस ऑफ jurisprudence determined. According to Austin, jurisprudence is concerned with positive law. This is the main thing on which whole theory of Austin is based, that is positive law. According to Austin, जो jurisprudence है वो concerned है positive law के बारे में. What is positive law? Positive law means law as it exists, जो कि अभी existence में है. ठीक, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द गुडनेस और बैडनेस ऑफ लॉज. अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, jurisprudence का कोई लेना देना नहीं है लॉ के गुडनेस और बैडनेस से. एंड ही ऑल्सो डिवाइडेड jurisprudence इंटू टू कैटेगरीज, एज इन जैसे बेंथम ने jurisprudence को दो तरीके के jurisprudence में डिवाइड किया, एक्सपोजिटोरियल एंड सेंसोरियल. अकॉर्डिंग टू बेंथम, सिमिलरली ऑस्टिन ने भी jurisprudence को दो तरीके के jurisprudence में डिवाइड किया, दैट इज जनरल jurisprudence एंड particular jurisprudence. According to Austin, general jurisprudence means such subjects or the ends of law which are common to all legal system. As the word general जो word है वो अपने आप में ही समझा रहा है कि general means वो subject या फिर वो law जो कि common है, जो कि generally सब तरीके के systems में applicable है. Whereas particular jurisprudence means the study of actual system of law or the portion of law, study of any particular law कर रहे हैं आप, एक narrow study कर रहे हैं, that is particular jurisprudence.
ऑस्टिन का जो ये क्लासिफिकेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है इनटू जनरल जूरिस्प्रूडेंस एंड पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस इज क्रिटिसाइज्ड बाय हुम, बाय सामन एंड हॉलैंड। ये सब पढ़ना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज इस तरह से कई बार आपको क्वेश्चन बना करके दिया जा सकता है इन स्टेटमेंट फॉर्म्स की ऑस्टिन ने जूरिस्प्रूडेंस को जनरल और पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस में डिवाइड किया एंड लेकिन जो ऑस्टिन की ये व्यू था इसको क्रिटिसाइज़ किया। तो दे माइट आस्क कि किसने क्रिटिसाइज़ किया, तो सामन और हॉलैंड ने क्रिटिसाइज़ किया ऑन द ग्राउंड कि ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है। दिस हैज़ नथिंग टू डू विद प्रैक्टिकलिटी एज पर सामन एंड हॉलैंड। नेक्स्ट वी कम टू द डेफिनेशन ऑफ हॉलैंड। तो हॉलैंड ने किस तरीके से डिफाइन किया? हॉलैंड ने कहा कि जूरिस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड फॉर्मल? अब ये वर्ड यूज़ करते हैं फॉर्मल। तो अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन जूरिस्प्रूडेंस एक तरीके से फॉर्मल साइंस है पॉजिटिव लॉ का। दो हॉलैंड ने भी माना तो यही कि जूरिस्प्रूडेंस इज़ द स्टडी ऑफ पॉजिटिव लॉ, ये भी पॉजिटिव लॉ से ही जूरिस्प्रूडेंस को रिलेट कर रहे हैं, बट हॉलैंड ने कहा कि इट इज़ अ फॉर्मल साइंस। फॉर्मल मीन्स दैट विच कंसर्न्स ओनली विद द फॉर्म ऑफ लॉ, दैट इज़ कि जो एक्सटर्नल कंटेंट ऑफ लॉ है उसके बारे में डील कर रहे हैं एंड नॉट विद द एसेंस और इट्स इंटरनल कंटेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है। हॉलैंड डिफाइन करता है पॉजिटिव लॉ को कि इट इज़ अ जनरल रूल ऑफ द एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शंस विच आर एनफोर्स्ड बाय सम सॉवरन पॉलिटिकल अथॉरिटी। दिस व्यू इज सिमिलर टू दैट ऑफ ऑस्टिन, क्योंकि ऑस्टिन भी यही कहते हैं कि लॉ इज़ कमांड ऑफ सॉवरन, और हॉलैंड ने भी यही माना कि पॉजिटिव लॉ क्या है? पॉजिटिव लॉ इज द जनरल रूल ऑफ एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शंस विच आर एनफोर्स्ड बाय सम सॉवरन पॉलिटिकल अथॉरिटी। दस हॉलैंड कहते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस इज अ फॉर्मल साइंस एंड इट इज़ नॉट ए मटीरियल साइंस। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आती है दैट इज सामंड। अकॉर्डिंग टू सामंड jurisprudence is the science of law and by law he means law of land और civil law। तो सामंड ने jurisprudence को जोड़ा civil laws के साथ। एंड जैसे बेंथम ने दो तरीके का jurisprudence बताया, ऑस्टिन ने दो तरह का jurisprudence बताया। नाउ यू कैन रिकॉल द बेस्ट वे ऑफ स्टडिंग इज, जब भी आप पढ़ें तो आप ये ना हो कि आज आपने एक टॉपिक पढ़ा, नेक्स्ट डे आपने कोई टॉपिक पढ़ा, थर्ड डे आपने कोई टॉपिक पढ़ा। जब भी आप नेक्स्ट डे कोई सेकंड टॉपिक पढ़ें तो आप फर्स्ट वाले को रिकॉल करते चलें। तो जैसे इस समय हम वेरियस डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं, तो जहाँ जहाँ पर कुछ ऐसा आ रहा है जो कि को रिलेटेड विद समथिंग एल्स है, तो आप उसे उसी समय अपने माइंड में दोबारा सोचें। जैसे हम पढ़ने वाले थे कि सामंड ने जूरिस्प्रूडेंस को 3 तरीके का बताया, तो जैसे ही आपने ये देखा कि सामंड के अकॉर्डिंग जूरिस्प्रूडेंस ऑफ 3 काइंड्स, एकदम आपके माइंड में आना चाहिए कि ऑस्टिन ने भी तो 2 तरीके का जूरिस्प्रूडेंस बताया है। क्या बताया है? अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन जनरल एंड पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस बताया है। फिर आपको याद आना चाहिए कि बेंथम ने भी तो 2 तरीके का जूरिस्प्रूडेंस बताया है एंड एज पर बेंथम एक्सपोजिटोरियल एंड सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस है। ओके, सो इस तरह से आप रिकॉल करते चलें चीज़ों को। According to Samand, jurisprudence is of 3 kinds, that is expository or systematic jurisprudence, legal history and science of legislation. What is expository or systematic? Is that which deals with the content of the actual legal system, कि जो existing legal system है, जो actual legal system है, उसमें क्या contents हैं, यानी क्या laws हैं। लीगल हिस्ट्री इज़ जो कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लॉ के साथ डील करता है कि जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं वो हमेशा से ऐसे तो नहीं थे, उनके पीछे कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, तो दैट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की स्टडी को लीगल हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट में रखा गया। थर्ड वन इज साइंस ऑफ लेजिस्लेशन, मीन्स व्हाट लॉ ऑट टू बी। तो ऑट टू बी मीन्स फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट एक तरीके से लॉ का हम देखना चाह रहे हैं। Also, Samand has classified jurisprudence in generic sense and specific sense. In generic sense, that is the entire body, यानी जो generally applicable है, और specific sense means particular. This is similar to that of ऑस्टिन। ऑस्टिन ने जिस तरीके से जनरल और पर्टिकुलर बताया है, उसी तरह से सामंड ने जेनरिक और स्पेसिफिक सेंस में 2 तरीके से jurisprudence को डिवाइड कर दिया। सो द मेन एसेंस ऑफ द views of Samand is कि jurisprudence is the science of first principle of civil law.
तो जब कभी भी आप पूरी पूरी डेफिनेशन तो इनकी याद रट नहीं सकते कि किसने क्या कहा, यू कांट क्रैम इट अप। सो आप कर सकते हैं कि आप वर्ड्स से याद रखें कि अकॉर्डिंग टू सामन जूरिस्प्रूडेंस इज़ द साइंस ऑफ सिविल लॉ, कि सामन ने जूरिस्प्रूडेंस को कनेक्ट किया है सिविल लॉ के साथ। तो जब कभी आपको सिविल लॉज से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन लगे तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, सिविल लॉ के बारे में तो सामन ने कहा था, इट मीन्स कि ये सामन की डेफिनेशन है। ऐसे ही आप समझ सकते हैं ऑस्टिन के बारे में कि ऑस्टिन ने पॉजिटिव लॉ की स्टडी के बारे में कहा था, ऑस्टिन ने कमांड ऑफ सॉवरन कहा था। इस तरह से आप कीवर्ड्स से याद रखें कि किस जूरिस्ट के क्या व्यूज़ थे। ओके, सो हेयर आवर वीडियो कम्स टू एन एंड। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जूरिस्ट हैं हमने उन्हें ही केवल डिस्कस किया है, जो कि फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब आवर चैनल, hit the like button and share this video as much as you can. Thank you.